سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی حج کی ادائیگی کے بعد لاہور واپس پہنچ گئے۔ وطن واپس آتے ہی محسن نقوی کا گنگارام اسپتال کا دورہ، ایمرجنسی وارڈ کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے مریضوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی کی جانب سے ہسپتال آمد ہوئی ہے اور انہوں نے مریضوں کی عیادت بھی کی ہے۔ وزٹ کا احوال بتائیں گے، لیاقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی لیاقت۔ آج بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی جو کہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، آج سے لاہور واپس پہنچے ہیں اور واپسی کے فوری بعد انہوں نے جو ہے وہ گنگارام اسپتال کا دورہ کیا اور ایمرجنسی وارڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مریضوں کی عیادت کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے عید تعطیلات کے دوران دکھی انسانیت کی خدمت سے مصروف ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو شاباش دی اور کہا کہ مریضوں کے مالداروں، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو عید کی مبارکباد ہو۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں اور علاج معالجہ کی سہولتوں کا بھی انہوں نے اس موقع پر جائزہ لیا۔ آپ کا بہت شکریہ لیاقت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جناح ہاسپٹل آمد ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے زخمی پولیس اہلکار محمد ندیم کی عیادت کی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران زخمی ہونے والے اہلکار ہمارا قیمتی سرمایہ ہے۔ مجاہد لطیف سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ جی مجاہد، اپڈیٹ کیجیے۔ بالکل اسامہ، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جناح ہسپتال آمد ہوئی ہے اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زخمی پولیس اہلکار محمد ندیم کی عیادت کی اور پولیس مقابلے کے دوران ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کانسٹیبل ندیم کی خیریت دریافت کی۔ آئی جی پنجاب نے جو ایڈیشنل ایم ایس جناح ہسپتال سے یا سلطان سے غازی اہلکار کی صحت اور علاج معالجے بارے تفصیلات پوچھی۔ آئی جی پنجاب کی کانسٹیبل ندیم کی جلد بحالی کے لیے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ کانسٹیبل ندیم سے گفتگو کرتے ہوئے آئی جی پنجاب نے اس کا حوصلہ بڑھایا، جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ آئی جی پنجاب کی کانسٹیبل ندیم کی والدہ، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے بھی گفتگو ہوئی۔ بھرپور تعاون کی یقینی دہانی کروائی گئی۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے دوران زخمی ہونے والے غازی افسر اور اہلکار ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، ایسا کہنا تھا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا۔ تھانہ چونگ انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات کانسٹیبل ندیم مانگا منڈی کے علاقے میں دوران ڈیوٹی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ عید قرباں پر صفائی کا بہترین انتظام لاہور ایک بار پھر بازی لے گیا۔ لاہور کی کارکردگی تمام اضلاع اور ڈویژن سے بہتر رہی۔ وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری نے لاہور کی ٹیم کو خصوصی شاباش دی۔ LWMC ٹیموں کی شاندار کارکردگی، عید کے تینوں روز مسلسل صفائی آپریشن، آلائشوں کی کلیکشن اور ان کو ٹھکانے لگانے کے عمل میں تیزی رہی۔ لاہور وال سٹی فوڈ اسٹریٹ میں LWMC کی عید صفائی مہم کی اختتامی تقریب میں کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا، ڈی سی رافع حیدر اور CEO LWMC بابر صاحب الدین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے کہا کہ صفائی کا عملہ ہمارا ہیرو اور اصل شاباش کا مستحق ہے۔ تینوں روز کم سے کم وقت میں شہر کو زیرو ویسٹ بنایا گیا۔ کل 55,000 ٹن سے زائد آلائشوں اور ویسٹ کو ٹھکانے لگایا گیا۔ مانیٹرنگ کا عمل انتہائی سخت تھا۔ اوور آل لاہور کے اندر صفائی ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے، لیکن اس عید پر تمام کے تمام پرانے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ LWMC کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، MCL اور اس کے علاوہ LDA کے بھی آفیسرز یہاں پہ شامل رہے ہیں اور ہماری کنٹونمنٹ بورڈز والوں کے ساتھ بھی بہت اچھی کوارڈینیشن تھی اور آپ یقین جانیے کہ ایک ایک پل کی خبر وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 72 گھنٹوں سے زائد آپریشن میں 15,000 سے زائد عملے اور افسران نے حصہ لیا۔ بہت اچھے انتظامات رہے ہیں۔ تینوں دن لاہور کو زیرو آؤٹ کیا گیا، زیرو ویسٹ رات تک ہم نے کریٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو سپروائزری ٹیئرز تھے وہ سارے کے سارے فیلڈ میں بڑے متحرک رہے ہیں۔ اسی لیے تینوں کنٹرول رومز جو ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے انٹر کنیکٹڈ تھے تاکہ جہاں پہ بھی کوئی کمپلینٹ آتی رہی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ ہی کیٹر فار کرتے رہے ہیں۔ CEO LWMC بابر صاحب الدین نے بتایا کہ سارا کریڈٹ ہمارے ورکرز کو جاتا ہے۔ لاہور کے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے بھرپور تعاون کیا۔ یہ ساری ٹیم ایفرٹ تھی جس کی وجہ سے لاہور کو روز زیرو آؤٹ بھی کیا گیا، کسی قسم کی کوئی آلائش کی کمپلین نظر نہیں آئی اور آپ سب اس کے لیے بہت زیادہ مبارکباد کا مستحق ہیں اور آپ سب کے لیے یہ بھی آپ سب سے وعدہ ہے کہ
इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे ऑनरेरियम्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छे बोनसेस और प्रमोशंस का भी ऐलान किया जाएगा। तकरीब में LWMC के वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। महकमों के अफसरान और स्टाफ को शाबाश दी है, जबकि ईद सफाई ऑपरेशन को आज शाम तक हर हाल में मुकम्मल करके ज़ीरो वेस्ट सूरत हाल को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। मोहसिन नकवी ने लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में आलाइशों की डिस्पोजल का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। सफाई इंतजामात बारे शिकायत पर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। मोहसिन नकवी का कहना था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां गली मोहल्लों और बाज़ारों की सफाई सुथराई की जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं, जबकि इंतजामी अफसरान और मुतल्लिका इदारों के हुकाम दफातर से बाहर निकल कर सफाई ऑपरेशन की निगरानी जारी रखें। शहर में 34,000 मैट्रिक टन कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात तल्फ की गई। शहरियों की सैकड़ों शिकायत का अजाला किया गया। इस बारे मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान पर शहर भर में सफाई सुथराई का अमल जारी रहा। 15,000 वर्कर्स फील्ड में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात ठिकाने लगाने में मसरूफ थे। 4600 गाड़ियां सफाई ऑपरेशन का हिस्सा थीं। बड़ी गाड़ियों के जरिए आरजी डंपिंग साइट से अलाइशें लखूडे लैंडफुल साइट पर ट्रांसफर की जाती रही। डिप्टी CEO फाद महमूद ने बताया कि 34,000 मैट्रिक टन वेस्ट ठिकाने लगाया जा चुका है। हजारों शिकायत का अजाला किया गया। चांद रात से लेके अब तक जानवरों का बाकियात अलाइशें मिला के हम 34,000 टन जो है कूड़े को और अलाइशों को ठिकाने लगा चुके हुए हैं। आज के दिन में अब तक 7,000 अलाइशें हमारी डंपिंग साइट्स पे पहुंच चुकी हुई हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स हैं जिसमें 6,000 कंप्लेंट्स कल हमें रिसीव हुई हैं और उसमें से हमने 5800 को रिजॉल्व कर लिया और अभी तक फिर हम 4,500 कंप्लेंट्स में से कोई 2,500 कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर चुके हैं। शहर लाहौर में ईद के तीसरे रोज 7 बजे तक सफाई ऑपरेशन मुकम्मल करके जीरो वेस्ट किया जाएगा। कैमरामैन नुमान के हमरा इमरान अकबर, राहो न्यूज़। शहर लाहौर की तारीख में पहली बार बेहतरीन सफाई इंतजामात रहे हैं। लाहौर लशपश करता दिखाई दे रहा है। वज़ीर इत्तलाआत और बल्दियात आमिर मीर ने तारीफ कर दी है। आमिर मीर ने कमिश्नर लाहौर और CEO सफाई कंपनी के साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात के दौरे भी किए हैं। LWMC ईद पर सफाई के लिए मुतहरिक, दूसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी। शहर भर में 16,000 वर्कर्स और भारी मशीनरी सफाई के अमल में मसरूफ। वज़ीर इत्तलाआत बल्दियात आमिर मीर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और CEO LWMC बाबर साहब दीन भी उनके हमरा थे। इन्होंने कज़ाफी स्टेडियम, वहादत रोड, बरकत मार्केट समेत दीगर इलाकों का जायजा लिया। आमिर मीर ने शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजामात की तारीफ की और कहा कि तारीख में पहली बार लाहौर लश लश कर रहा है। अफसरों और मुलाजमीन ने अनथक मेहनत की है। लाहौर की तारीख में शायद इतनी सफाई नज़र आ रही है। ईद कुर्बान के दूसरे रोज़ भी आलाइशें जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रही और पंजाब के बाकी बड़े शहरों में भी यही सूरत हाल है। लाहौर में सूरत हाल सबसे बेहतर है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि अब तक 17,500 टन से जायद वेस्ट और अलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। शहरी सफाई ऑपरेशन में LWMC की टीमों के साथ ताउन करें। 17,500 टन कल जो है वो वेस्ट कलेक्ट की गई है और हमारी इस दफ़ा बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है कैंटोनमेंट बोर्ड्स के साथ और LWMC की कंट्रोल रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं। सेफ सिटी से भी मॉनिटरिंग की गई है। शहर की सफाई सुथराई के ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर ने खुद गाड़ी ड्राइव की। उनके हमरा वज़ीर बल्दियात आमिर मीर भी मौजूद थे। ईद के तीसरे रोज़ भी दावतें लाहौरिये खाबे उड़ाने में मसरूफ़। शहरियों की बड़ी तादाद ने रॉन रोस्ट करवाने के लिए अपने मनपसंद मराकज़ का रुख कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक और आज ईद उल अज़हा का तीसरा रोज़ भी जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। आज तीसरे रोज़ शहर लाहौर पहले 2 दिन तक कुर्बानियाँ और गोश्त तकसीम करने में मसरूफ़ रहा। वहीं आज तीसरे रोज़ शहर लाहौर ने जो है वो दावतों का इंतज़ाम कर लिया है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर बकरे की रान को जो है वो रोस्ट किया जाता है और ये जगह मशहूर इस वजह से क्योंकि इनके मसाला जात जो हैं वो खासे मज़ेदार और तीखे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो इधर अपने मेहमानों के लिए रान रोस्ट करवाने आए हैं। इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइएगा कि ईद कैसी गुजरी थी? बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, पहले दिन और दूसरे दिन कुर्बानी के बाद क्या क्या मसरूफियात? मसरूफियात ये थी कि खाने के लिए बस वो मेहमान आए, मेहमानों के लिए जो सब कुछ अरेंजमेंट किया। बहुत ज़्यादा आदमी मेहमान आए हैं और यहाँ की रोस्ट रान जो है ना बहुत यमी है और बहुत अच्छी है, इसलिए हमने भी यहाँ पे रोस्ट कराने के लिए रान
और अब मेहमान कर रहे हैं, मेहमानों के लिए खिलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरी का ये कहना है कि आज जो है वो क्योंकि दावतों का वक्त है और दावतें शुरू हो चुकी हैं शहर लाहौर की, क्योंकि शहर लाहौर की ज़ीनत ही ख्वाबें हैं, इस वजह से शहरी भी जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं अपनी रान जो है वो रोस्ट करवाने के लिए बकरे की, और उसके अलावा मज़ीद जो है वो खाने का एहतमाम करने के लिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद का तीसरा रोज़ भी सैर सपाटों के नाम रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने तफरीगाहों का रुख कर लिया। ईद के तीसरे रोज़ भी गुलशन इकबाल पार्क में रश रहा है, जबकि बच्चों की बड़ी तादाद वालिदैन के हमरा झूले झूलने में मसरूफ़ दिखाई दी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदा शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल पार्क में और लाहौर के जिंदा तराने लाहौरिये जो हैं वो ईद का तीसरा रोज़ भी भरपूर तरीके से मनाते दिखाई दे रहे हैं। चटपटे खाने खाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे पार्क्स के अंदर झूले लिए जा रहे हैं और बच्चों की भी कसीर तादाद जो है वो दिखाई दे रही है। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा पहले 2 दिन ईद के कैसे गुजरे और कैसे प्रोग्राम बन गया आज बाहर निकलने का? पहले 2 दिन तो बहुत मसरूफ थे कुर्बानी करने में, मानो का आना जाना। अब दूसरे दिन से बच्चों ने शोर किया था कि भाई बाहर जाएं, बाहर कहीं घूमे फिरें, तो अब बच्चों को बाहर लेकर आए हैं, जरा खुश हुए हैं बच्चे। आप मुझे बताइएगा कि आपके बच्चों ने कौन कौन से झूले लिए हैं और क्या क्या खाया पिया आपने ईद पे? खाया तो हम लोग घर से लेकर आए थे। अच्छा जी, और ये बच्चे कुछ मौजूद है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। बेटा आप मुझे बताओ कौन कौन से झूले ले चुकी हो अभी तक? हम बहुत सारे ले चुके हैं। खाना क्या क्या खाया है? बहुत कुछ खाया है, बहुत से झूले लिए गए हैं। गोश्त की ईद के साथ साथ जो है बच्चों का ये भी कहना है कि जरूरी है कि झूले लिए जाएं, क्योंकि झूलों के बगैर ईद का मजा नहीं आता। इसीलिए जो है वो आज पार्क्स का रुख किया और यही वजह है कि पार्क्स में एक रश दिखाई दे रहा है, बच्चे और बड़े जो है वो झूले लेते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ईद के तीसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद ने बच्चों के साथ लाहौर चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे मनपसंद जानवरों को देखकर खुश हुए। बच्चों ने जानवरों के साथ सेल्फियां बनाई और सैर व तफरीह करके लुत्फ अंदोज हुए। ये रिपोर्ट देखिए। ईद के तीसरे दिन बच्चों की मौज मस्ती अरूज पर रही। तफरीह गाहों में खूब हला गुला करते रहे, पार्क्स में खूब झूले झुलाए, भाग दौड़ जी भर कर खेले। धर्मपुरा में लगे मेले में भी बच्चों ने घोड़े की सैर और जंपिंग की। खिलौनों की खरीदारी के लिए वालिदैन से तकाजा किया। कहते हैं गोश्त खा के जी भर चुका, अब खेल कूद से एंजॉय कर रहे हैं। अभी हमें 2 झूले लिए हैं, वो है ये है, अभी हम और भी लेंगे। अभी मैंने पिंग लिया, हॉर्स लिया, अभी और भी झूले लेने हैं। खेल कूद और मौज मस्ती के साथ साथ बच्चों ने चटपटे खाने भी खाए। बच्चों ने ईद का तीसरा रोज़ भी तफरीह के नाम कर दिया है। मौज मस्ती और खूब हला गुला किया है। धर्मपुरा में लगे मेले में बच्चों ने खूब एंजॉय किया है। बड़ी ईद बड़े खुशगवार दिन। 2 दिन तो कुर्बानी, गोश्त बनाने, तकसीम करने, खाने पकाने और खिलाने में गुजरे। तीसरा दिन शहरियों ने बच्चों के हमरा सैर व तफरीह के लिए वक्फ किया। शहर के बागों और पार्कों में रश रहा। तारीखी शालामार बाग में भी रौनक अरूज पर थी। बच्चे बड़े मर्दो खवातीन कसीर तादाद में शालामार बाग की सैर को पहुँचे। सैर सपाटे का सबसे ज्यादा लुत्फ तो बच्चों ने उठाया। शहरियों का कहना था कि ईद का त्योहार ही खुशियों भरा होता है। बच्चों के साथ सैर व तफरीह उसे मजीद 4 चांद लगा देती है। कैमरामैन शान के हमरा शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। ईद के तीसरे रोज़ शालामार बाग में भी भरपूर रौनक रही। हर उम्र के अफराद तारीखी बाग की सैर से लुत्फ अंदोज हुए। बच्चों की अटखलियाँ इनकी खुशी का पता दे रही थीं। शाहजेब शहजाद की ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी ईद बड़े खुशगवार दिन। 2 दिन तो कुर्बानी, गोश्त बनाने, तकसीम करने, खाने पकाने और खिलाने में गुजरे। तीसरा दिन शहरियों ने बच्चों के हमरा सैर व तफरीह के लिए वक्फ किया। शहर के बागों और पार्कों में रश रहा। तारीखी शालामार बाग में भी रौनक अरूज पर थी। बच्चे बड़े मर्दो खवातीन कसीर तादाद में शालामार बाग की सैर को पहुँचे। सैर सपाटे का सबसे ज्यादा लुत्फ तो बच्चों ने उठाया। शहरियों का कहना था कि ईद का त्योहार ही खुशियों भरा होता है। बच्चों के साथ सैर व तफरीह उसे मजीद 4 चांद लगा देती है। कैमरामैन शान के हमरा शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। 2 दिन की भरपूर मसरूफियत के बाद फुर्सत के लम्हात शहरियों ने ईद के तीसरे रोज़ तफरीह गाहों का रुख कर लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क में खूब गहमा गहमी रही। झील की कशिश ने भी सबको भाया।
कुर्बानी, गोश्त की तकसीम, मेहमान नवाजी। ईद के 2 दिनों की भरपूर मसरूफियत। शहरियों ने तीसरा दिन घरों से बाहर गुजारा। लुत्फ अंदोज होने के लिए ग्रेटर इकबाल पार्क पहुँचे। पार्क की झील में कश्ती रानी से महजूज हुए। शहरियों का कहना था कि कश्ती रानी की सैर और कदरे बेहतर मौसम ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। हमने मिलके प्रोग्राम बनाया, ये बच्चों को ग्रेटर इकबाल पार्क लेके आए हैं। यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, वेदर काफ़ी अच्छा है, तो ये कश्ती रानी की सैर का एक अपना ही मज़ा है। मीनार पाकिस्तान के साए में बनने वाली झील सियाहों की तवज्जो का खसूसी मरकज रही। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा के मौका पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुक़ीम बच्चों के लिए खसूसी इंतज़ामात, फूड स्टॉल्स और झूलों का इंतज़ाम किया गया। बच्चे कहते हैं ईद का बहुत मज़ा आ रहा है, मनपसंद अशिया खा रहे हैं और झूले झूल रहे हैं। ईद उल अज़हा की खुशियाँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में खसूसी इंतजामात, बच्चों के लिए कुर्बानी का भी एहतमाम किया गया। बच्चों को नए कपड़े और जूते फ्राहम किए गए। बच्चियों के लिए मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल सजाए गए। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बच्चों के लिए खाने पीने के स्टॉल्स और झूले लगाए गए। बच्चों ने दही भल्ले, बर्गर, गोलगप्पे और आइसक्रीम खाकर खूब इंजॉय किया। इंतजामात देखकर बच्चे खुश दिखाई दिए। कहते हैं ईद का बहुत मजा आ रहा है, मनपसंद अशिया खा रहे हैं, झूले झूल रहे हैं। हमारी ईद बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। मैंने आज गोलगप्पे खाए, काफ़ी कुछ खाया, मुझे बहुत मज़ा आया। हमने गोलगप्पे खाए, दही भल्ले खाए, दोस्तों के साथ एंजॉय किया, झूले लिए हैं, इधर फिरते रहे, डांस किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों में ईदी और तोहफे तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि हब्स की शिद्दत में इजाफा, शहर का टेम्परेचर बढ़ने का इम्कान। माहिरीन सेहत ने हब्स के बायस मुख्तलिफ अमराज के बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। इसके लिए क्या एहतियात ज़रूरी हैं, जानते हैं मैं हॉस्पिटल में मौजूद हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन। जी सज्जाद। बिल्कुल हीट स्ट्रोक का मौसम ख़त्म हो गया है और गर्मी के बाद अब मज़ीद गर्मी है। हबस का मौसम, ह्यूमिडिटी का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है। मौसम बरसात है और इस मौसम बरसात के अंदर जो है हबस के मौसम से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। इस मौसम में कौन सी बीमारियां फैलती हैं, हबस के मौसम में, बरसात के मौसम में मरीज़ों को और आम सेहतमंद लोगों को कौन सी एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान काज़मी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। देखें जी, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें पेट की बीमारियां हैं, जल्दी अमराज हैं, आँखों के इन्फेक्शन हैं, ये सारी फैल सकती है क्योंकि जैसे जैसे बरसात आई है वैसे वैसे पसीना बहना बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहर में घुस के अपने आप को एक नहा लेते हैं दिन में 2-3 दफ़ा कि चलो यार गुजर तो रहे हैं, नहा लें। उसमें गंदा पानी है। जहाँ जहाँ भी आपको सीवरेज का मिक्स पानी, ऐसे स्विमिंग पूल या नहर जहाँ से आपको लग सकता है, उसे आपको जल्दी अमराज, फोड़े, फिंसियाँ, ख़ासतौर पर अगर शुगर के मरीज़ हैं आप तो गढ़ बन सकते हैं, उनमें से पस पड़ सकती है, ऑपरेशन कराने पड़ सकते हैं। आँखों के इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाएंगे। आप देखेंगे अक्सर लोग आँखें मलते हुए फिर रहे होंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, पसीना आता है। उसके अलावा हीट एग्जॉशन हो सकती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाली पानी, एक तो साफ़ पानी का इस्तेमाल करें, दूसरा बीच में नमकियात हों, कोई ORS वगैरह। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि इस मौसम के अंदर मरीज़ों को और आम सेहतमंद लोग खुराक के बारे में मतलब खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरह एहतियात करनी चाहिए। देखें जी, खुराक बिल्कुल साफ़ इस्तेमाल करनी चाहिए, फ़्रेश की फ़्रेश पकी हुई हो। कोशिश करें फ्रिज में, फ्रीज़र का रखा हुआ खाना बार बार ना खाएं। अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही दफ़ा गर्म करके पूरा खा लें। ये ना करें कभी उसे अंदर रखें, कभी बाहर निकालें। अभी बहुत सारा गोश्त लोगों ने स्टोर किया है तो कोशिश करें कि फ्रीज़र, लोड शेडिंग मतलब जब बार बार होगी तो गोश्त के ख़राब होने का चांस है। और पेट की बीमारियाँ जो हैं वो बहुत फैल जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बरसात में लोग अक्सर खा लेते हैं, बदपरहेज़ी करते हैं। कोई भी अपना जो है खाना जल्दी ख़राब होता है ह्यूमिडिटी की वजह से। जी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब का कहना है कि इस मौसम के अंदर फोड़े फिंसियाँ हो सकती हैं, नाकस खुराक ना इस्तेमाल की जाए और इस मौसम के अंदर जो है वो दिल के मरीज़ और गुर्दों के मरीज़ को जो बे ख़तरात लाक है उनसे एहतियात की जाए। फ्रिज की चीज़ जो है उसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि मुख्तलिफ और पेट की बीमारियों से बचा जा सके। जी, आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। गरीब मरीजों के लिए इलाज मुआलजा मज़ीद मुश्किल हो गया है। सेहत कार्ड में इलाज मुआलजे की सहूलियात में बतदरीज कमी हो गई है। निगरान पंजाब हुकूमत ने सेहत सहूलत कार्ड के तहत गायनी के मरीजों का भी मुफ्त इलाज बंद कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक 1 जुलाई से निजी हस्पतालों में दिल के मरीजों और गायनी का मुफ्त इलाज मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। मरासले के मुताबिक 65,000 तक तनख्वाह या इनकम वाले हजरात सेहत सहूलत कार्ड पर निजी हॉस्पिटल से इलाज करवा सकेंगे, मगर उनको इलाज में 30% अपनी जेब से अदा करना होगा। फैमिली हेड के सेहत सहूलत कार्ड में बैलेंस 0 कर दिया गया है।
لاہوریہ بسیار خوری سے باز نہیں آئے. عید کے پہلے 2 روز گیسٹرو اور ڈائریا کے بڑی تعداد میں مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اسپتالوں کی ایمرجنسی وارڈ مریضوں سے بھر گئی. شہر کے 6 سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد نے رخ کیا. محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے. بسیار خوری مہنگی پڑ گئی. بے احتیاطی پر لاہوریوں کی بڑی تعداد ہسپتالوں میں جا پہنچی. عید کے پہلے روز گیسٹرو اور ڈائریا کے بڑی تعداد میں مریض رپورٹ. ہسپتالوں کی ایمرجنسی معدے کے انفیکشن اور ڈائریا کے مریضوں کے ساتھ بھر گئی. شہر کے 6 بڑے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد رپورٹ ہوئی. میو اسپتال میں 650 سے زائد مریض گیسٹرو، ڈائریا اور پیٹ درد کے ساتھ آئے. جناح اسپتال میں تقریباً 400 جبکہ جنرل میں 100 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. سروسز اسپتال میں 600 کے قریب گیسٹرو کے مریض آئے جن میں 250 مریض بچے بھی شامل ہیں. گنگارام اور میاں منشی اسپتال میں بھی 200 کے قریب مریض رپورٹ ہوئے. میڈیکل سٹورز پر بھی سینکڑوں مریضوں نے اپنے طور پر ادویات دیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ معدے اور جگر کے مریض گوشت کھانے سے زیادہ جلدی متاثر ہوتے ہیں. قربانی کا گوشت سبزیوں کے ساتھ کھائیں اور 100 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں. دہی، لیموں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں. بقرہ عید پر کتنا گوشت کھانا ہے، ڈاکٹرز نے خبردار کر دیا. کولیسٹرول، یورک ایسڈ، گردوں میں جگر، شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے. ڈاکٹر حیدر علی کہتے ہیں کہ بیمار افراد 70 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں. عید قربان پر کتنا گوشت کھانا ہے، طبی ماہرین نے شہریوں کے لیے ہدایات جاری کر دی. کولیسٹرول، یورک ایسڈ، گردوں، میدا، جگر، شوگر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص احتیاط کی ضرورت ہے. میڈیسن اینڈ کارڈک اسپیشلسٹ ڈاکٹر حیدر علی کا کہنا ہے کہ بیمار افراد 70 گرام سے زیادہ گوشت نہ کھائیں. صحت مند افراد 100 گرام تک گوشت کھائیں. کولیسٹرول، شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض نمک اور مسالہ جات کا کم استعمال کریں. سب کو احتیاط کرنی چاہیے عید پہ کہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ رش ہوتا ہے وہ معدے کے مریضوں کا ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں کو خطرہ لاحق ہے جیسے بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، دل کے مریض، گردوں کے، جگر کے، تو ان کو ایک خاص مقدار جو الاؤڈ ہوتی ہے، جس پہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ اپنے وزن کے لحاظ سے 1 گرام پر kg کے حساب سے آپ ایک میٹ لیں جس میں 70 گرام میکسیمم 100 گرام تک بیسیکلی لو پروٹین ڈائٹ وہ لیں. لیکن اگر انہوں نے لینا بھی ہے تو اس لمیٹڈ اماؤنٹ میں جو ان کو الاؤ کیا گیا ہے اس میں لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی کا استعمال تھوڑا کریں زیادہ. نمک، مرچیں اگر کھانا بھی ہے تو کوشش کر لیں بوائل کر لیں. باربیکیو ہم لوگ کرتے ہیں وہ اس میں پھر مسالہ وغیرہ تھوڑا سا مناسب رکھیں، خاص طور پہ جو دل کے مریض ہیں، گردوں کے مریض ہیں. ڈاکٹر حیدر علی کا مزید کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ پر اسپتالوں میں بسیار خوری سے ہمیشہ رش بڑھ جاتا ہے. ڈائریا، ہیضہ اور میدا جگر کے سب سے زیادہ مریض رپورٹ ہوتے ہیں. گلے میں ہڈی پھنسنے کے مریض بھی سامنے آتے ہیں. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ کافی زیادہ رش آ جاتا ہے ہسپتالوں میں. اس میں زیادہ گیسٹرو کے مریض پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس پیش ہوتے ہیں جن کو ڈائریا، وامٹنگ، اور تو ان چیزوں کا احتیاط کریں. ایک خاص مقدار میں لیں، تھوڑا تھوڑا لیں. طبی ماہرین کے مطابق گوشت کو اچھی طرح پکا کر استعمال کیا جائے. سلاد، دہی اور پھل کا استعمال لازمی کیا جائے. کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. دائمی امراض میں مبتلا افراد بھی گوشت کھا سکتے ہیں. ڈاکٹرز نے خاص مقدار اور پرہیز کے ساتھ گوشت کھانے کی اجازت دے دی. مناسب مقدار میں گوشت کے ساتھ سلاد کا زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت. یہ رپورٹ دیکھیے. شوگر، بلڈ پریشر، جگر و میدا اور یورک ایسڈ کے امراض میں مبتلا افراد پریشان نہ ہوں. ڈاکٹرز نے عید الاضحیٰ پر گوشت کھانے کی اجازت دے دی مگر کچھ شرائط کے ساتھ. معروف گیسٹرو انٹرولوجسٹ پروفیسر اسرار الحق کہتے ہیں دائمی امراض میں مبتلا مریض گوشت کے ساتھ سلاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دائمی امراض کا شکار ہے جس طرح شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کے امراض ہیں، گردوں کے امراض ہیں، یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں، تو ان میں کیونکہ یہ ریڈ میٹ ہوتا ہے، اس میں بکرے کا گوشت ہو یا دمبے کا گوشت ہو یا کسی بھی جانور کا گوشت ہو، اس میں آرگن میٹ نہ کھائیں. ہیپاٹولوجسٹ پروفیسر افضل بھٹی کا کہنا ہے چربی کو اچھی طرح صاف کر کے مناسب مقدار میں گوشت کا استعمال بہتر ہے. ریڈی میڈ پکوانوں سے پرہیز کریں. ریڈ میٹ ہے، بکرے کا گوشت اور بیف یعنی کہ گائے کا گوشت، اس میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے. اصولی طور پر جو چکنائی کی مقدار ہے اس کی وجہ سے جن مریضوں کو چکنائی کولیسٹرول کا پرہیز بتایا جاتا ہے ان میں وائٹ میٹ زیادہ مناسب ہے اور ریڈ میٹ ان کو اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے. طبی ماہرین کے مطابق معدے کی جلن اور متلی سے بچنے کے لیے گوشت 100 گرام سے زیادہ نہ کھائیں. کیمرامین ذیشان کے ساتھ سجاد کاظمی، لاہور نیوز. شہر میں پولیو وائرس کی روک تھام کے اقدامات. عید الاضحیٰ پر شہر میں عوام کی آمد و رفت میں تیزی آ گئی ہے. داخلی اور خارجی راستوں پر پولیو ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں.
ईद के मौका पर पोलियो वायरस की दोबारा वापसी के इम्कानात। दीगर शहरों से लोगों की लाहौर में आमदरफ्त के पेश नजर पोलियो वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमती इकदाम। ठोकर बस अड्डा, सिटी बस टर्मिनल और लारी अड्डा समेत दीगर मुकामात पर पोलियो की टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का कहना है कि पोलियो टीमों की तैनाती से वायरस को रोकने में मदद मिलेगी। वालिदैन खसूसी पॉइंट्स पर बच्चों को कतरे लाजमी पिलाएं। डॉक्टर जाहिद मुनीर का मजीद कहना था कि सफर से पहले बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे जरूर पिलाएं। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, तफरीही पार्क और शॉपिंग मॉल्स में पोलियो टीमें तैनात हैं। कैमरामैन बिलाल के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहल खाना के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ईद की छुट्टियां अहल खाना के हमरा मरी में गुजारेंगे। हमजा शहबाज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने अहल खाना के हमरा अपने रिहाइश गाह मॉडल टाउन से रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म खसूसी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद और फिर मरी जाएंगे। शहबाज शरीफ ईद की छुट्टियां अहल खाना के हमरा मरी में गुजारेंगे। हमजा शहबाज भी साथ हैं। सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि IMF से मुआहदा होने पर एक तबके में सफ़े मातम बिछ गई। डिफ़ाल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF से मुआहदे पर होने वाले मनफी तर्ज़ अमल पर नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि IMF से मुआहदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़े मातम बिछी हुई है। वज़ीर आज़म और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाया सेब के बादल छट रहे हैं। रियासत पर हमला करने वालों ने इस मुआहदे को सबोताज करने की बड़ी कोशिश की। पाकिस्तान के अवाम उनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी ढांचे की तंजीम नौ का सिलसिला जारी है। मेंबर साजी का आगाज़ हो गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मेंबर साजी में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत हर शोबा ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत की है, जबकि शहर की अहम शाहराहों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के परचम और बैनर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देने के अज़्म का इजहार किया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि IMF के साथ मुआहदा तय पा जाना पाकिस्तान की जीत है। इस मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाने वाले नहूसत के साए टल गए हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत मईशत के लिए तमीर और तरक्की का अज़्म लेकर मैदान में उतरी है। मुआशी इस्तेहकाम ही इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मंजिल है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि IMF से मुआहदा मुल्क की मईशत के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल होगा। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन से कारकुनों के मिलने का सिलसिला जारी है। उन्होंने सफाई ऑपरेशन पर LWMC के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा है। ईद के तीसरे रोज़ ऐवान इकबाल कैंप ऑफिस में ख्वाजा अहमद हसन से मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से मुलाकात की है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। ख्वाजा अहमद हसन ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर ने ईद उल अज़हा पर LWMC के सफाई ऑपरेशन को शानदार करार दे दिया है। बताया कि वज़ीर आज़म लाहौर में जारी सफाई ऑपरेशन की मुसलसल रिपोर्ट्स लेते रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने ईद तातीलात में महंगाई का बम गिरा दिया है। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। पेट्रोल की कीमत बरकरार है। डीजल महंगा होने पर किराए और अशिया खुरनोश के ट्रांसपोर्टेशन अखराजात बढ़ जाएंगे। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। वफाकी हुकूमत ने महंगाई का बम गिरा दिया। 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 262 रुपये फी लीटर की सतह पर बरकरार। डीजल महंगा होने से महंगाई की शरह मजीद बढ़ने का खदशा। मुसाफिर बसों के किराए, अशिया खुरनोश की ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी। परदेसियों को भी अपने काम काज पर वापसी के लिए जायद किराया देना पड़ेगा। डीजल की कीमत में इजाफे से खेतों से मंडियों तक सब्जियां, फलों और दीगर इजनास की नकलो हमल भी। ईद की छुट्टियों में भी महंगाई बिला तातुल जारी है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ईद कुर्बान पर भी ब्रायलर महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का पारा हाई।
ईद पर महंगाई माफिया बेलगाम, इंतजामिया रोकने में नाकाम। तातीलात के दौरान भी महंगाई बिला तातुल जारी। हंडिया का बुनियादी जिस्म सब्ज मसाला जात महंगे तरीन हो गए। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्च की मनमानी कीमतें वसूल की जाने लगी। प्याज 100 रुपए, टमाटर 140, लहसुन 500, अदरक 950 रुपए किलो फरोख्त, सब्ज मिर्च 180 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। ईद कुर्बान पर भी ब्रायलर गोश्त की कीमत कम न हो सकी। हर दुकानदार ने ब्रायलर गोश्त की कीमत अलग मुकर्रर कर रखी है। मुर्गी का गोश्त 750 से 1100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि गरीब के लिए हंडिया बनाना मुश्किल हो चुका। सब्ज मसाला जात की कीमतें ही कंट्रोल में नहीं आ रही। सर जी ये देखिए आपके पास ही दुकान है, इससे अभी आप पूछ रहे हैं कि यार लहसुन क्या भाव है, प्याज क्या भाव है। इससे 3 या 4 दिन पहले 50 रुपये था, अब लेने के लिए आए हैं तो वो बोल रहे हैं 80 रुपये ले लो। 80 रुपये नहीं गुंजाइश है। उससे कहते हैं यार ये ऐसे कर लो, वो कहता है लेना लो नहीं तो बाहर चले जाओ। ये साथ ही गोश्त वाली दुकान है, ठीक है। गरीब आदमी है, नहीं आया कुर्बानी का गोश्त, कहीं से भी नहीं आया। अगर आ जाता है कहीं से पाव 1.5 पाव, उसको पकाने के लिए 300-400 रुपये चाहिए, क्या खाएगा गरीब आदमी। ईद की तातीलात में शहर की सब्ज मंडियां बंद रहीं, जिसका महंगाई माफिया फायदा उठाते हुए गिरां फरोशी करता रहा।